afternoon, everyone. A very warm and cheerful welcome to everyone present here. It is an absolute honor to have you all join us for Abhedya, organized by UDAN, the Motivation Society of Hansras College. Abhedya is Sanskrit, in Sanskrit means impenetrable, unbreakable, and indivisible. Much like a diamond, it symbolizes the strength of those who refuse to be defeated by challenges and instead carve their own paths towards success. Today's session is all about channeling that spirit and discovering your passion. Udan is more than just a society. It is a movement that fuels ambition, nurtures dreams, and empowers individuals to break barriers. Our motto remains, Hausla hai, to udan bhi hogi, which translates to, if there is courage, there will be flight. I am Anushka and I am your host for today. I am delighted to welcome you all to this wonderful event. Today, we embark on a journey of motivation and self-discovery under the theme Unleashing Your Passion, Turning Your Dreams into Reality. First of all, I would like to welcome our esteemed guest, Mr. Aditya Ranjan Sir, an inspiration to thousands of students. It is truly an honor to have him with us today. We are also honored to have with us Dr. Sahil Mehta, Dr. Suresh Kohe, sir, whose valuable contribution have played a crucial role in shaping young minds. I extend a heartfelt welcome to our panel today. For a tradition of lamp lighting ceremony, light has always been a symbol of knowledge, clarity, and new beginnings. As we embark on this journey of self-discovery and motivation today, let us take a moment to begin this event on an auspicious note. For this, I would like to invite Mr. Aditya Ranjan Sir for the lamp lighting ceremony. Joining him, I would request the President of UDAN and everyone present on this planet here to join us for the lamp lighting ceremony. Now, it's time to honor our esteemed guest, Mr. Aditya Ranjan Sir, for his valuable presence to this event. I request Dr. Sahil, Dr. Suresh Sir, and Mr. Rawat Sir to felicitate Aditya Sir with a token of appreciation and gratitude. It is a proud moment for all of us that Dr. Suresh Kohe Sir has been appointed as the Deputy Dean of Students' Welfare. His dedication to student well-being and overall development is truly inspiring. To celebrate this special moment and honor this achievement, I again request Dr. Sahil Sir and Mr. Rawat Sir and Arpit Yadav to felicitate Suresh Sir. कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. A name that needs no introduction in the field of mathematics education, Aditya Sir. An SSC Excise Inspector and Educator Sir,
Sir is a beacon of inspiration for thousands of students preparing for competitive exams like SSC CGL, CHSL, and Railways. He has redefined the way students approach mathematics with his unique teaching style, conceptual clarity, and unwavering dedication. Sir is a proud alumnus of Delhi University, secured an Air 114 in CHSL. Aditya sir is not just an educator but a mentor, motivator, and a guide. His YouTube channel, Rankers Gurukul, with over 1 million followers, has been a guiding light for aspirants beyond academics. He is a passionate motivator and an author, reminding students that no dream is too big if pursued with determination. We're honored to have him with us today to share his wisdom and experiences. Now, without further delay, I invite our esteemed guest, Mr. Ritti Ranjan sir, to take the stage and enlighten us with his thoughts and experience. Please welcome sir on the stage. Thank you. सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की सोच रहे हैं? सभी सोच रहे हैं। अच्छा, कर भी रहे हैं। अच्छा, हमारे चैनल से कर रहे हैं। कितने लोग पढ़ते हैं? सर आपसे मैथ्स पढ़ी है। अच्छा, पढ़ भी रहे हैं। तो मैनेज कैसे करते हो फिर कॉलेज और चैंपियंस बैच हैं? कौन से बैच हैं चैंपियंस में? जो यूट्यूब पे है वो पूरा। अच्छा, वीओडी बैच से कौन कौन है? बहुत बढ़िया है। और बाकी सारे यूट्यूब से हैं। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? एक तरफ कॉलेज की भी पढ़ाई, ऊपर से हंसराज कॉलेज है तो रेगुलरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, और साथ में अपने कंपटीशन की भी तैयारी। कैसे मैनेज होता है? 2-3 आवर ही कॉलेज को देते हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ाई को 2-3 घंटे देते हैं, और बीच में सेमेस्टर्स आ गए तो फिर कैसे मैनेज करते हो? तब छोड़ देते हो पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया। तो चलो, बहुत अच्छा लगा देख करके। हालांकि देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, और चूंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो एक बार आप सभी के लिए तालियां हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आप में कोई बात है तभी आप यहाँ पर हैं। यहाँ अक्सर लोग आने के लिए सोचते हैं, इस प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भी सोचना पड़ता है। हर किसी का, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर वही बच्चा रह सकता है जिसके अपने अंदर में जुनून है, जो अपने दम पर यहाँ पर आया हुआ है, जिसने मेहनत किया, और यहाँ से आगे भी वही बढ़ेगा जिसके अंदर में एक जुनून होगा, एक दम होगा। ठीक है, बहुत मेरा भी सपना था एक बार मैं हंसराज कॉलेज पढ़ने का, और मैं भी आया था। 2014 की बात है। हंसराज कॉलेज में हिंदी में मेरा एडमिशन हुआ था, हिंदी ऑनर्स में, लेकिन हिंदी करना नहीं था। तो फिर यहाँ से हम गए ARSD कॉलेज। ARSD कॉलेज जानते हैं ना, साउथ कैंपस में। ये साउथ वालों को कहाँ इज्जत देते हो तुम लोग? नॉर्थ वालों की इज्जत थोड़ी ज्यादा होती है ना। ये साउथ वाले सर कॉलेज होते हैं, कैंपस नहीं होता कुछ। ठीक है, उसको कैंपस नहीं माना जाता है, कैंपस तो नॉर्थ ही है कि नहीं है? बताओ। मतलब पहले बेइज्जती कर रहे हो पूरा का पूरा है। हाँ, और बोल के साउथ कैंपस है सर। चलिए, साउथ कैंपस से बहुत बढ़िया है, दौला कुआं के पास ही है। तो वहाँ था वेंकी कॉलेज था, वेंकी में गए तो फिर वहाँ वेंकी में मिला मुझे मैथ्स ऑनर्स मिला। मुझे वो भी नहीं करना था, केमिस्ट्री करना था। फिर केमिस्ट्री हमने किया, किस्मत बहुत खेल के लिए यार। ठीक है, तो ARSD कॉलेज था। ARSD कॉलेज से 2014 से 2017 का मेरा पूरा 3 साल का रहा। वहीं से केमिस्ट्री ऑनर्स किया, और बाकी उसके बाद अपनी तैयारी की। फिर कस्टम्स में गए, एक्साइज इंस्पेक्टर बने, और बाकी आज आप लोग को पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, कोई भी बात है तो मैं चाहूंगा पहले आप लोगों के मन की बातों को मतलब जो है वो क्लियर करना, क्योंकि यूट्यूब पर तो यार हम लोग बोलते रहते हैं, रील भी है, वीडियो भी है, जो भी है वो मैं अपने अनुसार बना रहा होता हूँ। बट मुझे जब भी स्टूडेंट सामने नजर आते हैं, चाहे कोई मीटअप होता है, कोई सेमिनार होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बातों का जवाब मैं दे पाऊँ, आपके जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल पाए। ठीक है, एक उसी उम्मीद के साथ शायद आप भी आए होंगे कि मेरे मन में ये सवाल है तो उसका मुझे जवाब मिल जाए सर से, तो वो आप बताइए, शायद उसमें मैं आपकी बहुत अच्छी मदद कर पाऊँ। बताओ, किसी का कोई भी सवाल है तो? एनी क्वेश्चन? तैयारी से संबंधित, फ्यूचर से संबंधित, आगे बढ़ने से संबंधित, करियर ग्रोथ हम क्या ले सकते हैं, कैसे हम आगे चूज कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मैथ्स को इतना इजी बनाने के लिए। थैंक यू सर। और मेनली मैं इसलिए अटक जाता हूँ, मतलब मैं पढ़ ही रहा हूँ, स्टार्टिंग किया है मैंने, तो मेरे को एडवांस और अर्थमेटिक का है ना, मतलब एक बैलेंस
बनाकर चलना वो समझ नहीं आता कि मैं पहले अर्थमेटिक करूँ या एडवांस करूँ, दोनों में से एक तो करना पड़ेगा ना। या अच्छा कौन सा लगता है आपको? मेरे को अर्थमेटिक लगता ज़्यादा। अर्थमेटिक अच्छा लगता है। यस सर। तो जो चीज़ अच्छा लगे ना पहले उसको इंटरेस्ट बना करके आगे बढ़ो। जैसे जीएस में अगर हम देखें तो 8 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लास्ट में थोड़ा इन्वायरमेंटल और कंप्यूटर अपना देखना होता है। अब इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ज्योग्राफी लगता था, तो जीएस में इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी को पढ़ा कि उससे क्या होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है दिमाग में कि मेरा एक भाग तो खत्म हो गया है। और जब हमारा सेटिस्फैक्शन एक लेवल पर आ जाता है तो उसके बाद हम फिर दूसरे, तीसरे, चौथे पड़ाव पर जाते हैं। ठीक है, तो एक पहले मन में एक इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप अरिथमेटिक और एडवांस की बात करें तो पहले अरिथमेटिक का जब इंटरेस्ट आ रहा है तो उसे खत्म करो। फिर जो अनवांटेड चीज है उसमें जाओगे तो पता चलेगा जो अरिथमेटिक पढ़ भी रहे थे आप उससे भी हाथ धो बैठोगे, तो वो मत करो। अरिथमेटिक पढ़ो, अरिथमेटिक में बहुत टाइम भी नहीं देना है, लेकिन इतना कि हाँ हमारा वो पार्ट खत्म हो जाए। और फिर एडवांस की तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, मतलब ऐसा नहीं पूरा अरिथमेटिक छोड़ने के बाद में तब एडवांस में जा रहे, नहीं, थोड़ा थोड़ा उधर से कम करते गए, थोड़ा थोड़ा इसके आवाज बढ़ाते गए, वैसे कर लो। सर लास्ट क्वेश्चन था मेरा रिवीजन के लिए आप हर वीडियो में कहते हो रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। सर मैथ्स में रिवीजन एज अ सिर्फ फॉर्मूला देखने के लिए होता है क्या, कि बस फॉर्मूला देखे हाँ ये इसका हो गया बस रिवीजन, या फिर मतलब कैसे? रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है। रिवीजन का मतलब होता है आज के समय के हिसाब से कंसेप्ट, कि स्पेशली कंसेप्ट क्या लगता है। परसेंटेज आप पढ़ते हैं, परसेंटेज में इलेक्शन एक कंसेप्ट है कि नहीं? इलेक्शन में भी 2-3 तरह के हमारे सवाल बनते हैं, तो अब वो 2-3 तरह के जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं हमें बेसिकली वो ध्यान रख करके जाना है कि अगर इनवैलिड वोट अगर परसेंटेज में दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर वो मानो नंबर में दे दे तो हम कैसे करेंगे। जैसे हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, वहां पर अब AQ + BQ + CQ - 3 ABC वाला है, 4 तरह के फॉर्मूले उस पर बनते हैं, तो अब उसमें हम फॉर्मूला रिटेन करके जाएंगे। तो एडवांस वाला जो पार्ट होता है वो टोटली बेस्ड है फॉर्मूला पे। मीडियन का फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है, दिक्कत है। अपोलोनियस थ्योरम आपको नहीं आ रहा है, दिक्कत है। थेल्स थ्योरम नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत है। तो वहां पर आपको तो लगाना ही पड़ेगा। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, आपको फॉर्मूला नहीं पता, वहां इशू है। बट अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है वो टोटली लैंग्वेज बेस्ड है, और लैंग्वेज में हमें फॉर्मूले नहीं चाहिए, हमें वहां पर कंसेप्ट चाहिए। तो 2 अलग अलग भाग है, दोनों पर ध्यान रखना है। तो रिवाइज करते वक्त में इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो या तो आप अपने नोट से पढ़ लीजिए या फिर फॉर्मूला बुक तो है, उससे रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि जो सीजल 2024 का कल रिजल्ट है उसमें काफी गड़बड़ी भी है। ठीक है, 10 सवाल ऐसे हैं 20 तारीख के शिफ्ट में जिनमें सबको नंबर दे दिया गया, अवॉर्डेड फॉर ऑल। अब उसमें आप ऐसे मान करके चलो जैसे ये हॉल है, अब इस क्लास में मैं आपके मॉक टेस्ट वाले सवाल पर भी उसी को कनेक्ट करूंगा थोड़ा सा भी कुछ देर में। तो जैसे ये पूरा का पूरा हॉल है, इसमें सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब ऐसे मान के चलिए अभी मैं 100 क्वेश्चन का यहाँ टेस्ट लेता हूँ। 100 क्वेश्चन में इतना तो पता है कि 80 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें काफी सारे बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे। जनरल कंपटीशन में क्या होता है, सारा का सारा खेल ही वो रहता है 5-6 सवालों का। और अगर आप ऐसे मान करके चलो कि मैं 10 सवाल किसी शिफ्ट में अगर गलत दे रहा हूँ और वहां पर मैं उसके नंबर सबको दे देता हूँ, तो वहां पर मेरे भाई एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में और एक मेडियोकर में कहीं पर कोई फर्क ही नहीं रहेगा। फिर वहां पर आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे, कंपटीशन का नाम दे ही नहीं पाएंगे। और इसी के कारण क्या हो रहा है, कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट वाला जो क्वेश्चन कहा आपने कि कितने देने चाहिए, क्यों देने चाहिए, पहले बात कितने देने के पहले आपको ये समझना जरूरी क्यों देना चाहिए। क्यों इसीलिए देना है क्योंकि हमें अपने आप को और शार्पन करना है। एक वक्त था जहां पर लोग बिना मॉक टेस्ट दिए भी अपना आराम से क्वालिफाई कर जाते थे। फिर एक टाइम आया वहां पर जहां पर हम मॉक टेस्ट दे करके उसके कट ऑफ के पहुंचने की बात कर रहे हैं। अब मॉक टेस्ट इसीलिए देना है ताकि कम से कम हमारा स्कोर जो है वो 160 से ऊपर हमारा मेंटेन रहे। अगर उतना हमारा नहीं हुआ तो हमारा सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। तो मॉक टेस्ट सबसे पहले आप कब देंगे, 3 तरह का सवाल है कि मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। जब आपका सिलेबस 50 से 60% हो जाता है आप तब मॉक टेस्ट दो। उससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट दोगे आपको नेगेटिविटी मिलेगा। मानिए एक बच्चा है, पहले बार तैयारी अभी शुरू कर रहा है, 3 महीने हुआ इसको तैयारी करते हुए, और अभी से अगर ये मॉक टेस्ट देना शुरू करेगा, इसके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी इसको मिलेगा। पता चले कि 200 नंबर के पेपर में 40 नंबर आ रहे हैं, खुद ही लैपटॉप में स्कोर देखें और बंद कर दिए, कोई देखे। ठीक है, अपने आप को भी नहीं दिखाना, इंसल्ट महसूस होगा। कई ऐसे बच्चे हैं लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट देते रहेंगे, जैसे स्कोर का टाइम आएगा सबमिट करके शट डाउन, खुद भी नहीं देख रहा है कि कितना स्कोर है। गलती से पूछ भी लो, अरे नहीं यार डिमोटिवेट हो जाएंगे, रात का खाना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो भी काम नहीं करना है कि ऐसे स्टेज पे ही मॉक टेस्ट दे दिया कि किसी का सेंस ही नहीं बनता। दूसरा, बहुत लेटर स्टेज में भी नहीं जाना है कि जब हमारी तैयारी एकदम से खत्म हो गई हम तब देंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा।
50-60% सिलेबस पूरा हो जाए तब मॉक टेस्ट देना शुरू करो। उसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको पता चलते रहता है कि आप थ्रू आउट द ट्रैक पर हो। जैसे अगर मानिए ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम आपने पढ़ा और आज आपने मॉक दिया, सोलर सिस्टम पर ही क्वेश्चन आ गया और ये आ गया कितने एस्टेरॉयडल बेल्ट है वहां पे, या मान लो कि जुपिटर के पास में कितने वहां पर अपने खुद के सैटेलाइट है। तो वो जब पढ़ते हो ना तो लगता है अच्छा ये वाला सैटेलाइट यार मिस करके हम चले गए थे, यानी हमको ये वाली जानकारी भी पढ़ के जानी है। तो मॉक टेस्ट का वहां रोल हो जाता है। कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आप एक स्किप करके चले गए और वही पूछ लिया, तो ये पता चलता है कि नहीं सिर्फ पढ़ना नहीं है, थोड़ा दोहराई पढ़ना है, हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वो कैब में भी उसी तरीके से मिस करके जा रहे हो, इसलिए इसका रोल होता है। और जब 50-60% सिलेबस पूरा हो जाए तो देना शुरू करो। पहले तो हफ्ते में एक बार, ठीक है कि हाँ संडे टू संडे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। बाद में जब तैयारी बहुत अच्छी हो जाए तब मॉक टेस्ट की संख्या को बढ़ा दो। फिर जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी और काफी वो वायरल भी गई वहां पे, उसमें मैंने पूरा ये रिपीटर्स का कंसेप्ट समझाया था कि 2022 में जो रिपीटर थे, ठीक है, 2022 में आपको पता है कितनी वैकेंसी आई थी? किसी को आइडिया है? 30,000 कितनी? 30,000 के अप्रोक्स मान लेते हैं। 23 में वैकेंसी कितनी थी? लगभग 10,000, 8,000 समथिंग करके था, 10,000 मान लेते हैं डेटा है। और 24 में इस बार जो वैकेंसी है वो 18,000 है। यकीन करिए 30,000 की वैकेंसी में भी 15,000 लोग जो सिलेक्टेड हैं वो इस बार के पेपर को दे रहे हैं। मतलब इस कमरे में 50% पॉपुलेशन, ये पूरा सपोज करो ये डिपार्टमेंट है, कोई एक्साइज में है, कोई एमईए में है, कोई इनकम टैक्स में है, फिर भी 50% बच्चा उठ करके जाकर के बाकियों के साथ में टेस्ट दे रहा है। और किनके साथ में? जो फ्रेशर है। क्यों? वो अपने जॉब के साथ में सेटिस्फाइड नहीं है। उसी तरीके से 23 में भी लगभग 50% से ऊपर, हर साल पेपर का 60% रिपीटर बैठता है पेपर देने। तो इसको अब आप माइंड से निकाल दो कि आपके लिए रिपीटर कम होने वाले हैं, वो रहेगा आपका फाइट। क्योंकि जब पेपर लगातार होता है रिपीटर्स बढ़ते हैं। रिपीटर किस सेंस में नहीं बढ़ता है मैं बताता हूँ। मान लो कि आज पेपर हुआ सीजीएल का और आज से अब 4 साल के बाद में हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो बंदा नौकरी कर रहा है ज्वाइन करके वहां पे, ठीक है, तो वो उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं बनेगी तैयारी करने की। जैसे अब बीपीएससी को देखो, बीपीएससी क्या हो रहा था कि बहुत पहले अगर आप देखोगे तो कई सालों के बाद में पेपर्स हो रहे थे। अब कई सालों के बाद में पेपर हो रहे थे तो जिनका ज्वाइनिंग हो गया ना, अगर वो मानो साल भर तक कोई पेपर नहीं हुआ तो वो साल भर अपने डिपार्टमेंट के अनुकूल हो जाएंगे। वो काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सारी चीजों को वहां पर देख रहे हैं, लेकिन पता चला कि 2 महीने के बाद बीपीएससी का एक और पेपर है, तो बोलेगा जब तक ज्वाइनिंग हो रहा है तब तक क्या करना है, थोड़ा मॉक टेस्ट और लगा लेते हैं, एक और पेपर दे देंगे। वहां रिपीटर्स के बढ़ने की संभावना बढ़ती है। तो अब इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहकर भी उनको ना खत्म कर सकते हो ना उनको जन्म दे सकते हो, वो रहेंगे ही रहेंगे वहां पे। अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी ये बनता है कि जो भी वैकेंसी आ रही है आप इतना मान लो कि उसका 50% खत्म है आपके लिए, आप उसमें नहीं है। जो बाकी के 50% है आपकी फाइट वहां पर है। तो जो प्रेशर है फिर भी तो है ना। अगर मानो 18,000 भी है और 18,000 में 9,000 है तो 9,000 सीट थोड़ी कम होती है यार। आपको तो एक ही सीट चाहिए, 9,000 पे क्या करोगे आप? तो वो एक सीट चाहिए, तो आप अपने आप को बिल्डअप करो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने मॉक के स्कोर को खुद को जो है बेस्ट देते रहो। आज अगर 140 आया तो ये दो कि अगली बार मेरा 150 आना चाहिए, उसकी अगली बार 160 आना चाहिए, ठीक है। बाकी रिपीटर्स आएंगे जाएंगे, उनसे बहुत ज्यादा प्रभाव लेकर के गए मन में। रिपीटर्स हर समय थे, मेरे टाइम पर भी रिपीटर्स थे, आपके टाइम पर भी थे, आने वाले टाइम पर भी होंगे। दे आर द पार्ट ऑफ द कंपटीशन, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और मन में इसको लेकर के आगे बढ़ोगे तो एक भार रहेगा, तो उससे तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो वो ज्यादा लोड मत लो उसका, वो होगा। सिर्फ एसएससी में नहीं, हर एग्जाम में रिपीटर्स हैं और वो होंगे। आपकी नौकरी लग जाएगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन कैमरा आप भी यही काम करोगे। आपकी ज्वाइनिंग अगर हो गई, अभी जब बेरोजगार होते तो मन में पता है क्या होता है, नौकरी दिलवा दो, कहीं भी दिलवा दो, अंडमान निकोबार में भी दिलवा दो, चलेगा, सरकारी नौकरी चाहिए बस। और जब लग जाएगा तब इच्छा ये होगा यार शादी नहीं हो रही है, कोई भेज ही नहीं रहा लड़की अपनी, बताओ। तो अब यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो बिहार है वहां हो जाए, यूपी है तो वहां हो जाए, ज्यादा है 2 ग्रेड पे कम वाली नौकरी हो जाए, लेकिन कम से कम स्टेबल लाइफ रहे। आप भी भरोगे, आप भी रिपीटर हो जाओगे, ठीक है। तो है अपने अंदर में दम लाओ, करिश्मा लाओ, बीट करो उनको। कॉलेज का फर्स्ट ईयर थोड़ा मजे में निकलता है, सेकंड ईयर उससे थोड़ा कम निकलता है, और थर्ड ईयर में तो जो नहीं भी पढ़ने वाला होता है उसको भी आना पड़ता है बाहर कि चलो थोड़ा कॉलेज का शक्ल देख लेते हैं, थोड़ी क्लासेस का देख लेते हैं, थोड़ा टीचर का तो नाम जान लेते हैं। सच बताऊं सर, मैं अपने में मेरे को तो अपने क्लास टीचर का सर सेकंड सेमेस्टर में पता चला था कि ये है मतलब हमारे जो सारा ऐसे कर रहे होते हैं। हालांकि इसमें तो क्लास टीचर का कंसेप्ट नहीं होता, टीचर अपना अपना अटेंडेंस बुक लेकर के आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो इंटरेस्ट ही नहीं होता था कॉलेज जाने का, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में लगाने लगे कि चलो अब जाना है वहाँ पे। अभी आपके पे प्रेशर भी और रहेगा, फाइनल सेमेस्टर्स में आते आते आप पे थोड़ा ये रहेगा कि नहीं अच्छे से जो है, क्योंकि वहां पर ये हो जाता है ना कि 2 साल की पूरी मेहनत अब आकर के टिकी हुई है।
तो सबसे पहला जैसे आपने यहाँ पर ये कहा कि मेरा रेसलिंग से आए थे हम यहाँ पर, रेसलिंग कोटा से हम हैं, तो अभी भी आपका मन है स्पोर्ट्स में जाने का या आप वाकई में चाहते हैं कि सीखे? नहीं कर पाएंगे तो उसको आप जिंदगी से निकाल दीजिए। अब उसको याद ही मत करिए वहाँ पे। वो एक ऐसा हो जाएगा ना ओल्ड फ्लेम की तरह, पुराना प्यार, वो दर्द देता रहेगा बार बार वहाँ पे, ठीक है? उसको मिटा देना है पूरा का पूरा, ठीक है? अब आ जाते हैं एसएससी में। यहाँ पे एसएससी में आपको कोई सबसे पहले किस एग्जाम की तैयारी करनी है? CHSL, CGL या जिसमें नौकरी लग जाए? हाँ, नौकरी लग जाए। देखो सबसे पहले है ना, आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं एक बात बोलूंगा कि अगर कोई भी नौकरी करना चाहते हो, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं मिलता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी जॉब करना चाहते हो पहले उसके बारे में 2-4 बातें जान लो, समझ लो, ताकि तुम्हारी इच्छा शक्ति और बढ़ जाए, काम करने की क्षमता और बढ़ जाए और मेहनत कर पाओ, ठीक है? तो MEA का अगर मैं 2-3 बातों में बताऊं यहाँ पर, तो CGL में सबसे टॉप पोस्ट अगर इस समय डिमांड में है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही है। MEA कोई पोस्ट नहीं है, MEA एक डिपार्टमेंट है, और जो पोस्ट है वो है ASO इन MEA, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपका। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका जॉब अभी जब CGL आएगा, CGL में जो सबसे ज्यादा लोग हाइट मार्क्स वाले भर रहे होते हैं वो MEA के लिए ही भर रहे होते हैं। MEA में आपका हो गया तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पर होती है? दिल्ली में। 2 से आप 3 साल तक काम करते हैं, फिर डोजियर आ जाता है, आपका फॉरेन पोस्टिंग खुल जाता है। तो UPSC के बाद में SSC एक ऐसी नौकरी होती है, SSC में सिर्फ एक ही नौकरी ऐसी है जो फॉरेन जाने का मौका आपको देती है, और वो है आपका MEA। इसीलिए लोगों को सबसे ज्यादा डिमांड होता है। 2 साल के बाद में आपके पास में विंडो ओपन होता है कि आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइस के हिसाब से आप नहीं जाएंगे, आप डोजियर भरेंगे, फिर वो हार्ड कंट्री, हार्ड सी कंट्री, इस तरीके से करके आता है। अच्छा, लोगों के मन में क्या रहता है कि मेरा पोस्टिंग आया ना, मैं आपको इंटरनल बात बताता हूँ, क्योंकि अभी 5 दिन पहले ही आया था, एक स्टूडेंट था मेरा, वो सिलेक्टेड MEA में, विशाल तिवारी, ऑल इंडिया रैंक 84 है। तो आया तो बोला कि सर लोगों के मन में मिथ है, उनके मन में मिथ ये है कि MEA लेने के बाद में हम लंदन चले जाएंगे, हम वाशिंगटन DC चले जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन वहां पर सर मैं बताऊं कोई नहीं जाना चाहता है। मैंने कहा यार इतना बढ़िया शहर है, क्या दिक्कत है? कहता सर जितना बढ़िया शहर है ना तो खर्चे भी उतने ज्यादा हैं, इनकम ऐसा नहीं है, इनकम मिलेगा हमें वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप MEA में सबसे अच्छी बात यह है जिस भी कंट्री में पोस्टेड हो गए आपको पैसा उस कंट्री के करेंसी के हिसाब से मिलेगा। इंडिया में अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपकी वहां पर सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी लोग जाना क्यों नहीं चाहते हैं? सारे से सारे आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छे अच्छे मंत्री, MLA, MP और कैबिनेट मिनिस्टर से पैरवी लगवाई जाती है नेपाल के लिए। वो लोग सरप्राइजिंग सर नेपाल में क्यों है वहां पे, ठीक है? नेपाल के लिए लगवाई जाती है। पाकिस्तान आप सोचते हो कौन जाना चाहेगा? लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कारण मैं बता रहा हूँ वहां पर, क्योंकि वहां सैलरी ज्यादा होती है। जो रिस्की कंट्रीज होते हैं, जहां पर थोड़ा तनाव होता है, ठीक है, वहां पर एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। जैसे अगर CBI के बारे में अगर आप जानते हैं तो बाकी नौकरियों में 12 महीने की तनख्वाह मिलती है और CBI में 13 महीने की सैलरी मिलती है, 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है रिस्की जॉब्स में। उसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी होता है, ठीक है? तो पहले आप ये समझ लो कि आपको वाकई में वो जॉब करना है कि नहीं करना है। बहुत बेनिफिट्स हैं उसके, बहुत पर्क हैं। अगर आप किसी कंट्री में पोस्टेड होंगे MEA में ना, तो आपका ये हो जाएगा कि एक एम्बेसी जो होती है, मतलब एक एम्बेसी इज अ कंट्री विद इन अ कंट्री। अगर आप इस रोड में जाओगे जो कनॉट प्लेस वाला रोड है, अभी हम आते हैं वहां पर, तो हर कंट्री का वहां पर एम्बेसी है और उसमें कोई भी नॉर्मल नहीं जा सकता है, कोई भी मिनिस्टर्स नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा पहले उस पोस्ट के बारे में जानो, वो तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत करेगा। मुझे कस्टम्स में जाना था और वो भी मुझे मुंबई ही जाना था। मेरा फिक्स था कि GST लेंगे मुंबई लेंगे, या तो MEA लेंगे नहीं तो GST लेंगे, और GST में भी लेंगे तो मुंबई लेंगे। मुंबई में भी 3 जोन आता है, नासिक आता है, औरंगाबाद आता है, फिर एक पुणे आता है और एक ओरिजिनल मुंबई होता है, चर्च गेट जहाँ पोस्टिंग होती है सेंट्रल मुंबई में। उसमें भी मुझे नासिक, औरंगाबाद, पुणे कुछ नहीं चाहिए, मुंबई ही चाहिए। वहां पर जब आप जाएंगे फिजिकल होता है तो वहाँ पूछा जाता है, तो उसके इस बिहाफ पे ना हम और मेहनत करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने MEA फिक्स कर लिया तो फिर पहले दिन से आप ये माइंड बना करके चलो कि आपको अगर जनरल कैटेगरी से हो तो टॉप 100 के अंदर में आपको होना पड़ेगा। हालांकि टॉप 200 तक का भी हो जाता है सिलेक्शन उसके अंदर में, लेकिन टॉप 100 तक आप मान करके चलो कि आपको आना है। उसके आने के लिए आपको पूरा स्ट्रेटजी बनाना है, सारे सब्जेक्ट आपको एनालाइज करने हैं। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया। आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश ही पढ़ते रहेंगे। कुछ का GS बहुत अच्छा है, वो GS ही पढ़ते रहेंगे। कुछ का मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, लगाए जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन। लेकिन ये समझो मेरे भाई यहाँ पर कि सिलेक्शन एक सब्जेक्ट के आधार पर नहीं होगा। सिलेक्शन जो होता है वो ओवरऑल आपके चारों सब्जेक्ट के आधार पर होता है।
ऐसा नहीं है कि हम गणित के शिक्षक हैं, गणित के टीचर है तो अपनी सब्जेक्ट की ज़्यादा बखान करेंगे और बोलेंगे बाकी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। टीचर बाद में है, एस्पिरेंट पहले हैं, सेलेक्टेड पहले हुए हैं, तो जो बातें होंगी वो एक एस्पिरेंट वाली होंगी। तो एज ए यहाँ पर मैं आपको एक एस्पिरेंट की बात बताऊं तो आपको चारों सब्जेक्ट पर फोकस करना है और चारों के लिए आपको एक अच्छा एजुकेटर चूज करना है जिसके साथ में आप अलाइन कर पाए। कभी भी नाम देख करके उसके पीछे मत भागो, भीड़ वाली चाल मत चलो कि अरे वो सर के ऊपर में 1 लाख वॉचिंग उनके यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, पहुंच जाते हैं। क्या पता वहां पर वो फेक बिठाए, बोर्ड लगाओ वहां पे, कुछ भी तो हो सकता है। या क्या पता वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं लेकिन आपकी कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है। जैसे आपने RWA का कहा, अब RWA जो है ना वो आप अगर देखेंगे तो वो GD के एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ पर जो पैरामिलिट्री एग्जाम्स है उनके लिए वो बहुत अच्छा है। जो ग्रामीण बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप CGL लेवल पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपको CGL के लिए करना है तो पहले अपने बेस्ट सोर्सेस को पिकअप करिए। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ शुरू में, क्योंकि अभी आप कॉलेज लाइफ में आप यहाँ पर हैं, आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ अटेंड नहीं कर सकते हैं। आप 3 सब्जेक्ट को लेकर चले। जैसे आपने कहा ना सर मैंने बैच भी ले रखा है, फॉर्मूला बुक भी ले रखा है, 101 कंसेप्ट भी अटेंड कर रहे हैं, इतना करेंगे मर जाएंगे आप। रिवाइज करने का बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो बेस्ट यहाँ पर ये है कि आप 3 सब्जेक्ट को चूज करिए, जिसमें आपका हो गया कि अपना सुबह में मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपना एडिटोरियल कर लिया, वोकैबुलरी कर लिया आपने, ये वाला पार्ट फिनिश कर लो, जाने के बाद में करंट अफेयर कर लो, ठीक है, बस थोड़ा सा। और बाकी जो है शाम में अपना इंग्लिश, रीजनिंग और अपना मैथ्स कर लो। स्टैटिक जीके अभी मत करो, जब थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा बाकी चीजें हो जाएंगी तो करना। और शेड्यूल में है ना एकदम हार्ड एंड फास्ट आप लोग शेड्यूल मत बनाओ। बहुत लोगों का शेड्यूल देख के मैं डर जाता हूँ। 5 से 7 एकदम यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ, जैसे 7 बजेगा उठ जाएंगे। अच्छा कभी गलती से अगर 5 बजे की जगह तुम्हारी नींद 5:15 में खुल गई, चाल गाड़ी खुद को दोगे उठ के पहले। किसी काम का नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। भाई इतना क्यों डिमोटिवेट होना है यार, जब सारा दिन एक जैसा नहीं हो सकता। भगवान भी आज तक जो है कभी ऐसा नहीं कर पाए कि 3 दिन का टेम्परेचर वो सेम रख दे। आज 46 है तो कल 45 होगा तो 42 होगा, कभी बादल, कभी धूप, कभी छांव, कभी कुछ होगी। तो आपका हर दिन कंसिस्टेंसी लेवल सेम कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को समझिए, कभी ज्यादा पढ़ लेंगे कभी कम पढ़ लेंगे, लेकिन उसको लेकर के नेगेटिव मत होइए और एक्स्ट्रा प्रेशर आप मत लीजिए। मुझे आपकी बातों से ऐसा ही लगा देख करके बहुत प्रेशर ले रहे हैं, वो भी सेकंड ईयर में। इतना लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी 3rd ईयर भी आना है, सारी चीजें आना है। आराम से अपना एक शेड्यूल बना करके चलो, सारे सब्जेक्ट को टाइम दो प्रॉपर वे में, कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड अपने स्कोर से रहो मॉक्स में कि हाँ मॉक्स के मार्क्स बढ़ने चाहिए। वो अगर स्टैग्नेंट हो गया वहां पर तो इश्यू है आपके लिए। देखिए क्लास का सबसे सिंपल फंडामेंटल है कि आप क्लास अटेंड करो। और अब तो मैंने एसएससी मैथ टाइप वाइज वाली बुक जो लगाई है वहां पर आप उसको अलाइन कर लो। जैसे उसके साथ में क्या है, आपने आज कोई क्लास अटेंड किया, आज सपोज करिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आपने पढ़ा, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ने के तुरंत बाद आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन लगा लो। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि अब 20 दिन तक हम पढ़ रहे हैं और 20 दिनों के बाद में तब पूरा खत्म होने के बाद में तब जाकर के प्रैक्टिस शीट लगा रहे हैं। उसमें दिक्कत ये आएगी, फिर नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा तो पुराना आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो साथ के साथ हम जितना पढ़ा रहे हैं, एसएससी मैथ जो टाइप वाइज वाली आई है उसके साथ में उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जिस दिन टॉपिक खत्म होगा उसके बाद में अपने नोट से या फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा साथ के साथ में। फिर महीने के एंड में एक बार बैठो, महीने के एंड में जो भी 3 चैप्टर 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उनको फॉर्मूला बुक या अपने नोट से रिवाइज करो, बस और कुछ नहीं करना है। और क्वेश्चन लगाते वक्त में एसएससी मैथ्स में जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको स्टार कर लेना, ताकि दोबारा या तिबारा जब क्वेश्चन लगाना होगा तो सिर्फ उन स्टार मार्क्स क्वेश्चंस को लगाओ, ना कि पूरा लगा करके अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट में है ना एक सिंपल से फंडामेंटल रखो, वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग जिसके पास में है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका होता है। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि मेरे मैथ्स में 50 में 50 थे, इंग्लिश में 50 में 50 थे, रीजनिंग में 50 में 50 थे, मेरे तीनों सब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 50 थे। लेकिन जो नहीं जानते वो ये है कि मैंने सबको स्किप किया था। बना रहे हैं, रीजनिंग के 22 क्वेश्चन किए थे, 3 छोड़ दिए थे, मैथ्स के 23 क्वेश्चन किए थे, 2 छोड़ दिए थे, इंग्लिश में यहाँ पर वैसे ही 24 किया था, शायद 1 छोड़ दिया था। और जब सारा पेपर मेरा कंप्लीट हो गया, जब आखिरी के मेरे पास में 9 मिनट बचे हैं, तब मैं बैठ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जब आंसर किया था तब 84 क्वेश्चन तक मेरा कोई गलती नहीं था, 84 के 84 पूरे सही, लास्ट के 16 में मेरे कुछ मिस्टेक्स निकले थे। तो मैंने पेपर में एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग। सेम काम आप भी करो। क्या पता शुरू में आपके टफ क्वेश्चंस आए लेकिन बाद के क्वेश्चन आसान हो। आप शुरू के 5 को लेकर के ज्यादा दुखी हैं, बट वो 95 ऐसे हैं जो सिलेक्शन कराने आए थे। और 4-5 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा ही पूछेगा। और जिस कमीशन से आप तैयारी कर रहे हैं ना एसएससी की, आप उससे बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें।
अभी वो कुछ पूछ रहे थे, डीजे वाले बाबू का गाना वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि यहाँ पर इस गाने को जो कंपोज किया बताओ उनका नाम क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप सीरियल नहीं देख रहे, अलग अलग मूवीज के वो नाम पूछ ले रहे, कुछ भी पूछ ले रहे। कभी एक पेपर भी रिसेंट में हुआ था, कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है बताओ। अब ऐसे दिन आ गए हैं कि उनकी हाइट याद करनी पड़े, वो भी एसएससी जैसे पेपर में। तो आप अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो, वो पूछेंगे, उसमें अटेम्प्ट रेट दिखता है ना, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट देते हो उसमें देखो ना कितना % आंसर करेक्टली है। और अगर दिखेगा ना वो 4-5% लोगों ने आंसर करेक्टली किया हो तो समझ जाना उन्होंने दोबारा पेपर दिया है। कुछ लोग अपने ईगो को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए एक बार कम स्कोर आता है तो क्या करते हैं, फिर से दूसरी आईडी बना के और दोबारा टेस्ट देते हैं। और टॉप में जो 200 में 200 और वो भी कितने 40 मिनट में, ये वही लोग हैं। और वो कई, एक है लड़का मेरा लाइब्रेरी में, वो बेचारा एक दिन बैठ करके काफी डिमोटिवेटेड है, बहुत एकदम हद लेवल का। मैंने कहा क्या हुआ सर, मेरे तो स्कोर आ गए कम, चलो ठीक है। इस बंदे ने जो है सर 40 मिनट में पेपर कैसे कर लिया और 200 में 200 आ गए। उसको 20 मिनट लगा मुझे समझाने में कि देखो कैसे होता है। पहले उसने एक बार टेस्ट दिया होगा, टेस्ट देने के बाद में गलती आई होंगी, उसने सारे सॉल्यूशन देख लिए होंगे, फिर वो दोबारा बैठा होगा, फिर दोबारा बैठ करके उसने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टिक किया होगा और टिक करके तब उसका स्कोर ऐसे टॉप में आ गया कि यहाँ पर जो 1 लाख लोग हैं जो टेस्ट दे रहे हैं उसको उसका नाम याद हो जाए। बट ऐसा करके वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो कंपटीशन में नहीं है। तो अगर 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, तो उससे बहुत दिल पे लेकर के मत जाइए, आप उस 95 क्वेश्चन पे फोकस करिए ना। अगर वो 95 भी आप सही करके आ रहे हैं, 2 नंबर का है, तो आपके ऐसे ही आपके हो गए 190 नंबर के करीब में। तो अच्छे उसको पकड़ो, आप देखो एक बार की जो अच्छा ट्रेनर है कोई, काफी है यहाँ, मार्कोस करके हैं, शिष्या करके हैं, ठीक है। तो आप एकदम एग्जाम के टाइम पर ज्वाइन करोगे तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा। नहीं, अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि सीजीएल के लिए प्रिपेयर करोगे तो सीपीओ कभी नहीं दोगे। सीपीओ तो कभी ना कभी अटेम्प्ट करना ही करना है वहां पे। अब कुछ बच्चों को ये पता है कि हम फिजिकली उतना फिट नहीं है, और पेपर के जस्ट 1 महीना पहले बोलेंगे हमको, ट्रेनर को जाके इसे बोलेंगे सुनो बात ऐसा है, 3 गुना फीस देंगे, 3 गुना फीस। जो बोलोगे ना एक पांव पे खड़े रहने को वो कर लेंगे, क्योंकि मार्कोस वाले हमारे फ्लैट के ऊपर ही रहते थे, हम लोग 3 महीना तक वहां रहे। मैं ऐसी ऐसी बातें सुनूंगा ना, सर जो बोलो सर चना कितना खाना है ये बताओ, भागना कब है ये बताओ, सर किस बल भाग लेंगे हम यहाँ पे। ऐसी कहानी, नौकरी के लिए सब कोई सब गर्म करने को तैयार होता है, बट वैसे नहीं कर सकते आप। अब जाकर के मैं डॉक्टर के गले पे चाकू रख के बोल दूं 6 महीने में बच्चा पैदा करके तुम दिखा, पॉसिबल है क्या? जो टाइम लगेगा भाई वो लगेगा उसको यार। अगर उसको बहुत पहले उसने अगर ऑपरेशन कर दिया तो भी बच्चा वो सक्सेसफुल नहीं है, उसके अंदर में वो दम ही नहीं आ पाएगा, स्ट्रेंथ ही नहीं आ पाएगा। अगर आपको भागने के लिए आपको 3 महीने का समय चाहिए तो वो लगेगा। अब ये आपकी पार्ट ऑफ द प्लानिंग होनी चाहिए, पीछे से होना चाहिए कि हम एकदम 30 दिन पहले जाकर के तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब उसकी वजह से आप फेल हो जा रहे हैं और उसका गीत हमेशा गा रहे हैं, तो आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं। समझ रहे बात को लेकर के। दूसरा शेयर मार्केट में कमा रहे, इस वजह से सोच के मैं भी पैसे लगा दूं, पर मैं बोलूं यार उसने तो 4 गाड़ी खरीद ली, 2 बंगले खरीद लिए, मेरा एक बाइक तक नहीं आ पाया। मुझे ये भी समझने की जरूरत है कि वो कर रहा है तो कब से कर रहा है, कितना एक्सपर्टाइज है वो उसके अंदर में, मैं कितना एक्सपर्टाइज हूँ, मेरे पास में रिसोर्सेज क्या है, मेरी नॉलेज कहाँ तक है, तब उसके बाद में अपना आकलन कर पाएंगे। तो फिजिकल में फेल हुए तो पहले फिजिकल की कमियों को पकड़ो, उसको सुधारो, क्या पता आपका फिजिकल में हो जाए। और दूसरी बात जो आप सीजीएल के लिए कह रहे हैं, देखिए असफलताओं के बाद ही सफलता आती है। अगर सीधा सफलता के बाद में सफलता आ गया ना तो इंसान हैंडल नहीं कर पाएगा। फर्स्ट रैंक कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मेंटेन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचर आजकल बहुत हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई टीचर आता है, यूट्यूब पर पढ़ाता है, लेकिन हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता है। मुझे पता है उसके लिए मुझे कितना पेन लेना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पर एक पेपर में सेलेक्ट हो जाएंगे ना, वहां पे प्री जब आपका निकल जाएगा तो आपके ऊपर और ज्यादा भार आ जाएगा कि अब मुझे मेंस कैसे निकालना है। और गलती से तुक्के से जब प्री निकल जाता है और मेंस नहीं निकलता है तो फिर अपने आप को आप लूजर मानना शुरू करते हैं। क्यों करना है वैसा? शुरू से तैयारी इतनी अच्छी रखो कि कॉन्फिडेंस इतना हाई हो कि मेरा प्री भी निकलेगा, मेरा मेंस भी निकलेगा और हम आगे सेलेक्टेड है। तो तैयारी पे फोकस करो, मॉक टेस्ट के मार्क्स के ऊपर में फोकस करो, अपने आप को और बिल्डअप करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षित है, मैं फाइनल ईयर बीएसटी ऑनर्स है। सर मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ आजकल कि मेरी जो प्रिपरेशन है एसएससी की वो बिगिनर लेवल पे है। मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि फाइनल ईयर को पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ, हमारे मई में लास्ट सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर हमारा मई में हो जाएगा, उसके बाद मैं एसएससी की तरफ प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ूँ, या 2025 का अटेम्प्ट दे लूँ एज अ प्रैक्टिस, या 2026 का टारगेट करूँ उसका। ये बताओ आपको ग्रेजुएशन को लेकर के आगे कैरी करना है? क्योंकि मैं आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, मेरे केस में यहाँ पर ये था कि हम लोग बड़े डायलेमा में थे।
कि ये जो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि आप बीएससी कर रहे हैं फिर आगे एमएससी कर लो, आईआईटी जैम का पेपर दे लो, ठीक है, फिर वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट बन जाना, अच्छा पैकेज मिलेगा, ये मिलेगा, वो कंपनी बुला लेगी, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट वो हो जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर होंगे केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आगे जाके टीचिंग में, आकाश में कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है कोई किसी इंस्टीट्यूट में कर ले, इस वजह से तैयारी कर रहे हैं। कुछ का ऐसा कि नहीं भाई ग्रेजुएशन इज अ पार्ट, बस यहाँ पर ठीक है डिग्री के लिए चाहिए, मुझे जाना यूपीएससी में है, मुझे जाना एसएससी में है। तो जब आपका सेगमेंट कहीं और पे है तो फिर आप ग्रेजुएशन को बहुत सीरियसली मत लीजिए। मैं आपको टीना डाबी की स्टेटमेंट बताता हूँ। टीना डाबी पता है ना, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 है, ठीक है। तो जब उनकी स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली, वो भी शायद इस कॉलेज से थी, आई थिंक लेडी श्रीराम कॉलेज से थी वहाँ पे। तो उनका अगर आप देखोगे पूरा का पूरा इंटरव्यू, उन्होंने एक ही बात कहा था कि हम कॉलेज को उतना ही समय देंगे जितना हमारे कॉलेज के लिए ज़रूरी है, जितना डिग्री के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने सेलेक्ट हूँ, मैंने आज बताया कि मैं ARSD कॉलेज से हूँ तो आपको पता चला, इसके पहले किसको पता? नहीं पता। इसके पहले मेरे मार्क्स भी कितने हैं वो किसी को पता है? वेदर आई एम 95% स्कोरर या मैं जैसे तैसे करके पास हुआ, किसी को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। वो नाम क्या गया, एक्साइज इंस्पेक्टर है, फर्क उससे पड़ता है। तो जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके लिए मायने वो रखता है तो ग्रेजुएशन में 5% स्कोर कम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 लोगों में अगर आपके नंबर सबसे आखिरी भी आया ना, आप उतना अपने आप को इंसल्टेड महसूस मत करिए। क्या पता वो 50 के 50 अभी तैयारी कर रहे हो और आप नौकरी लेकर के उनसे आगे बढ़ जाए। सर अभी शुरू 2025 अटेम्प्ट देना चाहिए क्योंकि अभी देना चाहिए, सीरियसली देना चाहिए। 6-7 महीने हैं कुछ एग्जाम में अभी भी, जैसे CHSL हो गया या GD वगैरह हो गया, इनमें भी समय है, तो अभी शुरुआत कर देनी चाहिए प्रिपरेशन फाइनल ईयर के साथ। या 2026 को टारगेट करके नहीं ले लेते करोगे क्या, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अगले 6 महीने तक आप अपने ग्रेजुएशन को कितना इंपॉर्टेंस दोगे? इतना मुझे भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर्स के पेपर होते हैं ना, पिछले 5 साल का पढ़ते जाओ, क्वेश्चन वहीं से फंसता है। हमारा जो आधा सिलेबस है ना, फोटोकॉपी वाले भैया आसान कर देते थे, ठीक है, जो हमारे यहाँ थे, बोलते थे सब्जेक्ट बताओ, सेमेस्टर बताओ, ले जाओ 5 सवाल फिक्स है। ये होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है कि नहीं है बताओ? 5 साल का पढ़ के तो इतना आसान सिलेबस है, बस टीचर्स के क्लासेस अटेंड करने हैं, वो भी अटेंडेंस की वजह से। मुझे पता है क्लास में भी आप लोग कितना फोकस करते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि भाई आप उसी क्लास में बैठो, उन्हीं टीचर के पास में बैठो, वो जो कह रहे हैं वो भी सुन लो, लेकिन साथ के साथ उन्हीं कॉपीज में आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो। जैसे मैं आखिरी ईयर में, जब लास्ट ईयर में आया था वहां पर, तो टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वोकैब की शीट अंदर रख लूंगा और वोकैबलरी याद करता रहूंगा मैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स जस्ट अ डिग्री फॉर मी, उसके आगे मैं इसको बहुत कैरी नहीं कर पाऊंगा। शुरू में हम जोश में आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नाम बहुत बड़ा है, सारी चीजें बहुत बड़ी हैं, पर जब यहाँ पर आते हैं तो समझ में आता है कि यार मेरा जो गोल है, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए स्पेशली यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से एनवायरनमेंट सीख सकता हूँ, कल्चर सीख सकता हूँ, सारी चीजें सीख सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ की पढ़ाई है वो मुझे स्पेशली एसएससी के लिए बहुत मदद नहीं करने वाली है। यूपीएससी के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल है, बट एसएससी में कोई खास मदद नहीं करेगा। मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, मैं आपको बता रहा हूँ, और केमिस्ट्री के मेरे ऑनर्स करने के बाद मेरे को 4 सवाल में भी उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि जो एसएससी में केमिस्ट्री आता है वो एक स्टैटिक पार्ट है, 1 लाइनर है। वहां पर आपसे पूछा, ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रैब साइकिल का तुम पूरा का पूरा बताओ, तुम रिएक्शन बताओ कि इसको इसके साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? वहां पर छोटी मोटी चीजें पूछ ली जाएंगी कि टेस्ट बताओ, यहाँ पर लिटमस टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, छोटी मोटी जानकारी। तो उससे ऑनर्स का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिला। अब हम गधों की तरह लगे पड़े थे तीसरे साल में, सेमेस्टर्स करने हैं, प्रैक्टिकल्स करने हैं, वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, रात रात भर बैठ करके। असाइनमेंट आप लोगों को ही पता है मिलता है तो क्या करते हो, एक भाई व्हाट्सएप पे भेजिए, एक बार ये छापे जा रहे हैं वहां पे बैठ करके। पर टीचर भी ऐसा, उनको ही पता है सबके एक जैसे हैं, पढ़ लेते 8 पन्ने हैं 8 नंबर, 9 पन्ने हैं 9 नंबर, है कि नहीं सर? तो हमें पूरा सिस्टम पता है क्योंकि यहीं से निकले हुए हैं। तो इतना मेहनत वहां पर मत करिए। 10 के 9 में जगह अगर मान लो 7 भी मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतना स्ट्राइव मत करो उसको लेकर के कि नहीं मुझे तो पूरे के पूरे 10 भी लेके आने, दोनों हाथों में लड्डू खोजोगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसको थोड़ी कम प्राथमिकता दो, और अगर गवर्नमेंट एग्जाम में जाना अभी उसमें लग जाओ। फिर सर मैंने 2023 का CHSL दिया था, जिससे मुझे मेरा थोड़ा लेवल पता चल गया, जिसमें मैंने देखा कि इंग्लिश मेरा ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश पे थोड़ा कम फोकस करूंगा तो चल जाएगा, लेकिन मैं जहाँ मेरी थोड़ी नाव बिगड़ी वो मैथ्स और रीजनिंग में बिगड़ा। तो क्या मैथ्स को मैं कैसे अप्रोच करूँ, मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या थोड़ा किस तरीके से कि बेसिक से शुरू करो पूरा का पूरा। सर NCERT का कोई रोल है इसमें? इतना मत जाओ, बहुत ज्यादा बहुत लेट हो जाएगा, इतना मत जाओ।
शुरू करना है, फ्री में करना है अगर तो YouTube से शुरू करो। 60 मैराथन करके मैंने पढ़ाया हुआ है, उसकी पहली क्लासेस से शुरू करो, वहां से आपको बहुत सर मैराथन बैच है आपको, एक फाउंडेशन बैच है। हाँ, वो दोनों चीज बैच अभी मत लो, पहले आप यहाँ पर YouTube पर शुरू करो, ठीक है। एक मैंने सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया परसेंटेज करके, आप टाइप करो परसेंटेज बाय आदित्य रंजन, आई थिंक उसमें 5 करोड़ व्यूज हैं, 5 CR करके है, 5 करोड़ लोगों ने अभी तक उसको देखा हुआ है वहां पर। तो आप पहले उसके साथ में शुरुआत करो, वो बेस्ट है आपके लिए। PYQ बुक ले लेनी चाहिए शुरुआत में कि अभी थोड़ा टाइम? अभी कुछ नहीं, अभी पहले इंटरेस्ट जगाओ अपना, करो अपना पहले, तब उसके बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ बताओ भाई, काफी सवाल है, मैं जवाब भी बताओ। किस एज तक तैयारी करनी चाहिए? तो वो बुढ़ापे तक तैयारी करना है? तो ये बोलो ना सर, ग्रेजुएशन के बाद कितना टाइम तक मतलब हो जाएगा? सवाल भी ऐसे ऐसे होते हैं ना, कई बार मैं सोचता हूँ जवाब क्या दूं इसका। देखो बात ऐसी है, ग्रेजुएशन जब खत्म हो जाता है ना, ठीक है, तो आपके हाथ में चीजें नहीं होती हैं, सारी चीजों का एक फैक्टर मौजूद होता है। जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया 17 के एंड में, 18 से मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन जैसे तैयारी शुरू की पता चला 1 साल तक पेपर ही डिले हो गया, ठीक है, पेपर ही नहीं हो रहा है। अब उसमें मेरी तैयारी तो अच्छी है लेकिन पेपर नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो उस केस में हमें ये समझना जरूरी है, पहले आपने कहा ना किस एज तक, कि आपका पहले उस समय पेपर कौन सा है, कितने टाइम पर होने वाला है। हालांकि एक आइडियल और विन विन सिचुएशन जो रहता है वो ये रहता है 1 साल के अंदर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर से सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाना चाहिए, और तैयारी करने से 1 साल के अंदर में एटलीस्ट आप 140-150 तक आप पहुंच जाओ, उतना स्कोर आपका आना चाहिए पेपर के अंदर में। फिर उसके बाद आपका प्रीलिम्स हो रहा है, फिर आप मेंस हो रहा है, फिर अलग अलग पार्ट हो रहे हैं, आप उनमें बेहतर करते जाओ, आपके सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाओगे। माइंडसेट लेकर मत चलो। आजकल बहुत ऐसे बच्चे देखता हूँ, शुरू में जब मेरा रिजल्ट आया था ना, सर आपने कितने टाइम में सिलेक्शन लिया? 1.5 साल, किसी ने कहा 2 साल, किसी ने कहा 1 साल। जैसे आपका 1 साल से ऊपर जाएगा आप डिमोटिवेट, अरे उन्होंने तो कहा था 1.5 साल में सिलेक्शन हो, आए थे हंसराज कॉलेज में बोल के गए, जो 1.5 साल में सिलेक्शन नहीं लिया समझ लो कुछ नहीं करेगा जीवन में। जैसे तुम्हारा 1.5 साल हुआ तुम डिमोटिवेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। क्या पता कि हमारी सारी पढ़ाई ही इंग्लिश में हुई हो, इसीलिए मेरा इंग्लिश आसान था, इसीलिए मेरे लिए एडिटोरियल पढ़ना आसान था, इसीलिए मेरे लिए वोकैब पढ़ना आसान था। और क्या पता आपने जीवन में कभी इंग्लिश से पाला ही नहीं पड़ा आपका, आप पहला शब्द ही मोड़ी कम पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे कौन सा शब्द आ गया हमारे जीवन में, पहली बार हम सुन रहे हैं। वो फर्क है दोनों में, बेसिक्स में, तैयारी में, कहाँ बैकग्राउंड क्या रहा उसमें, हम कितने घंटे दे रहे हैं, दे भी रहे हैं तो कितनी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। क्या पता आप लाइब्रेरी में मैथ्स बना रहे हैं, बगल में IPL चला रहे हैं, पूरा 2 महीना तक भाई IPL का एक जर्रा जर्रा जानता है। अभी से पता होगा ऑक्शन में कौन कितने में बिका, पता है ना सबसे ज्यादा में कौन बिका, बताओ? नहीं पता है लेकिन बोल रहे हैं नहीं बोलने के बेइज्जती हो जाएगा। तो ये कहानी है, तैयारी भी कर रहे हैं तो कितने डेडिकेशन के साथ में कर रहे हैं ना भाई, वो बहुत मायने रखता है। 1 साल अगर कोई बहुत ही डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई करे, सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करके, तो डैम श्योर कि उसका कोई ना कोई एक सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो डेडिकेशन हो, मतलब ये नहीं कि अब चल रहा है मैथ्स भी और साथ में IPL भी चल रहा है, वो नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो सारा खेल वक्त का है, धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके स्कोर भी बढ़ते जाएंगे। आपने कहा ना जैसे अभी कि सर उस पर हम कैसे फोकस करें, सबसे पहले अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो आप पहले फोकस करें कि वो 50% आपके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब आप उसको पड़ाव को पार करेंगे, जब थोड़ा आप और आगे बढ़ेंगे, तब आप मॉडरेट पर आएंगे। अगर मैं अभी से बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ, मैं अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ चैंपियंस बैच में, 18 लेक्चर मैंने दे दिया, बट उसके बाद भी मुझे पता है कि तुम्हें 4 लेक्चर ऐसे थे जो तुम्हें करने थे, वो मैं पढ़ाता हूँ मेंस बैच में। कारण बता रहा हूँ, अगर उसको अभी पढ़ा दिया ना, बच्चा पहले खत्म हो जाएगा, बोलेगा छोड़ो यार मैथ्स ही इतना टफ है, SSC कितनी होगी, हटाओ, खत्म करो इसको। बहुत जरूरी है, बहुत ऐसी चीजें होती हैं। आपका कभी आप ये सोचिए ना, यूनिवर्सिटी में है यहाँ पे, क्या 3 साल का सिलेबस 1 ही साल क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, 1 ही सेमेस्टर में क्यों नहीं पढ़ा दिया जाता है? आपका पहला सेमेस्टर में हमेशा देखना वो सब्जेक्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बस इतना है कि एक ग्रेजुअल शिफ्ट लेकर के आ रहा है आपके इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन तक में। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमेशा सबसे लास्ट सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। कारण क्योंकि तब तक आप बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं, समझने की, सीखने की, सोचने की सारी क्षमता बढ़ चुकी होती है। उसी तरीके से सेम आपका ये जनरल कंपटीशन है। शुरू में जब आप तैयारी करते हैं तो आपको पहले बेसिक सीखना होता है, थोड़ा सा आगे जाना होता है, थोड़ी चीजों को समझना होता है। जैसे समझदारी आपकी आगे बढ़ती है, फिर बाद में उन क्वेश्चंस को जब आप एनकाउंटर करते हो तो वो भी याद हो जाता है। कई ऐसे सवाल है जो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको याद हो जाता है, कई ऐसा है जो क्विज से याद हो जाता है, कई ऐसा है किसी ने आपसे डाउट पूछा तो आपको वो याद हो जाएगा।
तो ये जो 20% जो सवालों का दायरा होता है ना, वो तब आता है जब आपका पीछे का 80% क्लियर होता है। तो वो आप अभी से प्लानिंग करके चलोगे तो नहीं होगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते चलोगे तब होगा वो। देखो सबसे पहले 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक थोड़ा सा 1 साल पहले का और एक अभी हाल फिलहाल 4 दिन पहले का। एक इंटरव्यू मैंने लिया था और मेरा स्टूडेंट था 2023 में, ऑल इंडिया रैंक 13, पता नहीं क्या नाम है, शायद प्रतीक या जो भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस लड़के से जब मैंने उसकी जर्नी जानी तो उसने अपना बताया कि सर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ MTS में सेलेक्टेड था, और वो भी कहाँ पे, कोयम्बटूर में। MTS के बाद में, अब MTS को लोग कहते हैं फाइल होने वाली नौकरी है, कुछ नहीं है, चाय बनाने वाली नौकरी है, ठीक है। फिर MTS के बाद में वो लड़का हुआ CHSL में सेलेक्ट, और CHSL के बाद में तब वो गया वहां पर सीजल में, और अभी सीजल में उसका ऑल इंडिया रैंक 13 है। ये बहुत पहले की बात है। रिसेंट में, अभी ज्यादा नहीं, 4 दिन पहले का मैंने क्यों कहा, क्योंकि रिजल्ट अभी 4 दिन पहले आया। मेरे यहाँ एक टाइपिस्ट है, संतोष झा नाम है उनका, उनके बेटे का नाम है अजय करके, ठीक है, बेटी का नाम है प्रिया करके, और हमेशा बच्चे जो है आते रहते थे ऑफिस यहाँ पे। झा जी हमारे साथ में पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। उनके बेटे का सबसे पहला सिलेक्शन हुआ MTS में। झा जी ने मेरे को आकर के कहा, सर मैं कंफर्म हूँ कि मेरा बेटा जो है वो सीधा सीजल ही निकालेगा, मैं इसकी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा हूँ। एक टाइपिस्ट जो 18,000 की नौकरी कर रहा है, सोचो यहाँ पे। अगला अटेम्प्ट दे रहा है उसका बेटा CHSL, और उसमें भी उनका सिलेक्शन हो रहा है, बट उन्होंने कहा सर मैं जानता हूँ ये सीजल निकालेगा, बट अब मैं ज्वाइनिंग करवा दे रहा हूँ, रिस्क नहीं लूंगा। अभी रिसेंट में झा जी का मैसेज आया मेरे पास में, ऑल इंडिया रैंक 735 है या 700 के रेंज में है, और CSS उसको मिला हुआ है। अब एक बात बताओ, वहां पर ऐसे तो उनको भी लोग ये बात कह सकते थे कि क्या जरूरत है, MTS में लेना है, सब कुछ लेना है। एंट्री जो होती है ना यहाँ पे, देखो तैयारी सबकी सेम है, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएशन में हो इसीलिए आप CGL का फॉर्म नहीं भर सकते, समझिए बात को। लेकिन अगर कल के दिन आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाए तो आप भरोगे ही भरोगे, और ऐसा नहीं है कि CGL की तैयारी के लिए आपको अलग से पढ़ना है। तो जैसे बेसिक जो माइंडसेट हमारा बन जाता है वो ये बन जाता है कि अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो 30-35 हजार की नौकरी क्यों करनी है। आप 30-35 हजार की नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जो लड़का जो अजय था उसने MTS की नौकरी के लिए नहीं पढ़ा था, उसने पढ़ा था CGL के लिए ही। जैसे जैसे उसके लेवल बढ़ते चले गए वैसे वैसे वो पेपर देता गया और वैसे वैसे वो आगे बढ़ता गया। कॉर्पोरेट में भी पहले दिन आप कंपनी के CEO नहीं बन जाते हैं, पहले दिन सबसे बेसिक लेवल से आप शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद में आप टीम लीडर बनते हैं, फिर उसके बाद में आप एक पोस्ट पर जाते हैं, फिर आप डायरेक्टर बनते हो। सेम उसी तरीके से आपके यहाँ पर भी है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो आपने CHSL दिया, लेकिन अगली वैकेंसी जैसे CGL की आई उसी तैयारी में थोड़ी प्रैक्टिस करके आपने CGL दे दिया, और दे दिया तो आप ASO लग गए। ASO के 6 साल के बाद में आप ऑफिसर बन गए, उसके बाद में ज्वाइन करते करते आप डिप्यूटी कमिश्नर तक चले जाओगे। क्या पता आप 20 साल बाद इसी कॉलेज में कमिश्नर बन के आओ। तो एंट्री तो CHSL थी ना, एंट्री कौन मायने रखता है। क्रिकेटर भी अगर बन रहा है वहां पे तो पहले वो रणजी खेलता है, रणजी के बाद में IPL खेलता है, इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो उस पर बहुत चर्चा का वो बात नहीं है। वहां पे लोगों को कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक स्टार्ट है, पहली सीढ़ी है, अंतिम नहीं है। हाँ बिल्कुल बेस्ट है। आप अभी जैसे मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं आप अभी, तो आप MTS का भी फॉर्म भरो, आप उसका भी पेपर देने जाओ। रीजन बता रहा हूँ, एग्जाम के नर्वसनेस को वो कम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइनिंग ले लो, जाकर के सेलेक्ट हो गए तो आप ज्वाइनिंग ले लो, मत लो, छोड़ दो नौकरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट पेपर इसीलिए दो ताकि एक माहौल का पता चले, एक्सपीरियंस का पता चले। नर्वसनेस जो होता है ना, सेंटर पर जाने के बाद हाथ पांव कांपने लगते हैं। 12x4 48 नहीं होता है, 44 आ जाता है। 4 बार भी क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, अच्छा सही किया कि नहीं किया कैलकुलेशन, वहां पे वो खत्म करेगा। ठीक है, ज्वाइन करना नहीं करना हो तो अपने हाथ में, नहीं करेंगे छोड़ देंगे। हमेशा कैलकुलेटिव पोर्शंस को एक साथ रखो जिसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें पेन उठाना पड़ता है, और GS हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, इसमें पेन नहीं उठाना पड़ता है। तो कोशिश करो यहाँ पर कि चाहे पहले कैलकुलेटिव कर लो या बाद में करो, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों को साथ में रखो। ठीक है, क्योंकि दोनों में कलम उठाना, आप स्विच बार बार मत करो, जितना स्विच करोगे उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चाहे आप मैथ रीजनिंग पहले कर लो, इंग्लिश GS बाद में कर लो, चाहे इंग्लिश GS पहले कर लो, मैथ रीजनिंग बाद में कर लो। मेरे लिए मेरा जो होता था ये होता था कि सबसे पहले मैं इंग्लिश करूंगा, इंग्लिश के बाद में मैं GS करूंगा, फिर रीजनिंग, फिर मेरा मैथ्स लास्ट में होता था। कारण है क्योंकि मैं ये समझता था कि हर सवाल बराबर नंबर का है। ठीक है, बस फर्क यहाँ पर यह है, मैथ्स को अटेम्प्ट करने में 30 से 35 मिनट लग जाता है कई बार शुरू स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, क्या पता 25 मिनट में हो जाए, 30 मिनट में हो जाए, अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन इंग्लिश जो है वो एकदम प्रेडिक्टेबल है कि 8 से लेकर के 12 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। GS फिक्स है कि 3 से लेकर के 6 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि शुरू के 18 मिनट में मैं 50% ऑफ द पेपर कंप्लीट कर दे रहा हूँ।
शुरू के 18 मिनट में मैं 25 सवाल इंग्लिश के, 25 सवाल जीएस के मैंने खत्म कर दिया। बाकी के मेरे जो समय बचा हुआ है उसके अंदर मैं बाकी 2 अटेम्प्ट करूंगा। वो खराब भी थोड़े हो गए तो फर्क नहीं पड़ता, इधर से तो मैंने स्कोर कर लिया ना, कमा लिया इधर से मैंने जितना कमाना था। और हम लोगों को दुख क्या होता है, मैथ्स का 2 सवाल छूट जाए तो दुख बहुत होगा, चाहे जीएस के 5 छूट जाए फर्क नहीं पड़ता। बट उल्टी स्ट्रेटजी है, समझो यहाँ पे 5 सवाल वो भी है, 2 सवाल ये भी, हर किसी के तो मार्क्स बराबर है ना। हमें फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करना है, आपका टोटल स्कोर बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो टोटल के लिए फाइट करो। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी हमेशा पहले होती थी कि नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को बहुत पहले रख करके ज्यादा से ज्यादा गेन करो उसमें, और तब सेकंड वाले पार्ट में जाओ। अच्छा ये बताओ, आप में से एसएसबी दिया है किसी ने, सीडीएस का या एनडीए का या किसी का भी? कितने लोगों ने दिया है? 2-3 लोगों ने दिया आपने। और बाकी सीडीएस के बारे में तो जानते हैं ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है, चलिए बहुत बढ़िया है। एसएसबी में इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे ना 5 दिन का होता है, जब इंटरव्यू वाला राउंड आता है तो उनको ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए कि अगर उसको गन दे दी ना तो ये इतना नॉलेजेबल हो कि उसके खोल करके पाठ पुर्जा देखे। और उनको ऐसा पर्सन भी नहीं चाहिए वहां पर कि बंदूक दे दी तो चलाना नहीं आना चाहिए, पता चला दुश्मन सामने खोल के देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठोक के भाग जाएगा। उनको ऐसा चाहिए इंटेलेक्चुअल पर्सन जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले पाए। जैसे अनुज नायर थे आपके, ठीक है, विक्रम बत्रा थे वहां पे, कि दिमाग काम कर रहा है, राइट डिसीजन हम कैसे ले पा रहे हैं। एसएससी कभी भी आपका यहाँ पर है ना कि वो कभी भी आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करती है। अगर वो नॉलेज टेस्ट करती तो आपके सब्जेक्ट का नाम मैथ्स होता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता। आपके सब्जेक्ट का नाम रीजनिंग होता, जनरल इंटेलिजेंस नहीं होता। आप पहले सब्जेक्ट का नाम समझिए, सब्जेक्ट का नाम क्या है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है कि वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाह रही है, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाह रही है कि समझने की और सोचने की क्षमता कहाँ तक है। वो लैंग्वेज का पेपर नहीं ले रही है, नहीं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज लिखता है या इंग्लिश लिटरेचर लिखता है। वहां पे एक बेसिक्स इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए कि पता चले कि कल के दिन कोई नोटिस आपके डिपार्टमेंट में आया और पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसमें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि वो वॉर के लिए बोला गया कि क्या कहा गया, आपने यस करके भेज दिया तो मामला पूरा खत्म हो जाएगा। फिर फोन आ रहे हैं विदेश मंत्रालय से, आ रहे क्या हो गया, तो उतना भी खत्म नहीं चाहिए जानकारी, और इतना भी बढ़िया नहीं चाहिए कि खुद के लेवल पे सारे डिसीजंस लेकर के तबाह कर दो सब कुछ। एक बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए कि जो सिस्टम के साथ में रह करके आप काम कर पाओ। बाकी जो भी आप पढ़ करके जाते हैं, यकीन मानिए 90% इसका बाद में कोई लेना देना नहीं होता है। मैं कस्टम्स में था, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हमने यहाँ पर सारी चीजें पढ़ी है इसका कोई वहां पर जरूरत नहीं है। वहां जब आपको जाएंगे वो अपनी खुद ही ट्रेनिंग करवाएंगे, आपको अपने वेपन्स जो हो गए वहां पर वो चलाना सिखाएंगे, ठीक है। जो बेसिक्स लॉ हैं जो कस्टम्स में जीएसटी में आते हैं आपको वो सिखाएंगे, ठीक है। जीएसटी अगर कोई डिफाई कर रहा है वहां पर तो कैसे उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो सिखाएंगे, रेड कैसे मारना है आपको वो सिखाएंगे। जीएसटी की टीम की रेड ऐसे नहीं होगी जाके दीवार तोड़ना शुरू कर दे, नहीं। जीएसटी का रेड, इनकम टैक्स का रेड दोनों के अलग अलग होते हैं। जीएसटी के रेड में भी अगर आप जाओगे वहां पर तो बस ये बोलेंगे देखो जैसे इस ऑफिस में अगर जीएसटी वाले आएंगे तो क्या करेंगे, सिस्टम कहाँ पर है वो देखेंगे, मोबाइल कहाँ पर है वो देखेंगे, एक छोटा से छोटा पेपर भी मिला ना जिसपे 20 भी लिखा हुआ है तो उसको भी उठा के लेके जाएंगे। ये जीएसटी का काम है, तो इसकी ट्रेनिंग वो अपने डिपार्टमेंट में देंगे। इनकम टैक्स वालों का काम तो फिर तो उससे खतरनाक लेवल का है। दिल्ली पुलिस वाला आएगा तो वो दीवार नहीं तोड़ेगा, सिस्टम नहीं उठाएगा, वो क्रिमिनल निगाहों से आपको देखेगा वहां पर कि अच्छा ये क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो सिनेरियो को वहां डेवलप करेगा, रिक्रिएट करेगा वहां पे। समझ रहे हैं बात को? सीबीआई वाले की अलग कहानी है। तो इसीलिए जो शुरू में कंपटीशन है पड़ाव है, छंटनी करने का पड़ाव है कि इसमें इतने सारे लोग हैं, मैं इसमें से 20 लोगों को कैसे सेलेक्ट करूं, किस आधार पर सेलेक्ट करूं। ये भाई साहब बीए पढ़ के आए हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, कोई बायो पढ़ करके आए, कोई मैथ्स ऑनर्स का है, कोई बीटेक करके आया है, तो इनमें से मैं यहाँ पर 20 ऑफिसर्स को कैसे सेलेक्ट करूं। तो सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वहां पर कि जो मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ वो हर डिपार्टमेंट का हो। ऐसा नहीं हो मेरा जीएस का सवाल कि भाई ये हिंदी वाले हैं इनको फायदा मिल गया, आप केमिस्ट्री वाले हैं आपको कुछ नहीं मिला। ऐसा भी मैं बायस होकर के सेट ना कर दूं कि बीटेक वाले सारे नौकरी लेकर के जा रहे हैं। नहीं तो अभी तो सवाल एसएससी के नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चंस पे उठ रहे हैं, कल के दिन यहाँ पर सब्जेक्ट पर उठना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखे जाते हैं जहां पर ऐसा हो कि उसमें कोई अटेम्प्ट ना कर पाए, वो सबके लिए नया और वो पेपर बायस ना कहलाए वहां पे। उसको इतना लेकर के मत जाओ, छोटी छोटी जानकारियां बेसिक के अंदर में कैसे फंक्शनिंग से, इतना एसएससी नहीं पूछेगी आपसे। एक इंटेलिजेंस आपका टेस्ट कर रही है ताकि सिर्फ इस भीड़ से छाट करके आपको बाहर निकाला जा सके, बस इतना फोकस करिए, ठीक है। मेरे को पूछना था कि जैसे हम स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है कि लेक्चर्स वगैरह देखने में लगता है, तो
अगर मान लो 3 से 4 घंटा आप लेक्चर देख रहे हैं तो कितना उसके रिस्पेक्ट में रिवीजन को टाइम अटेंडेंस कितना चाहिए सेमेस्टर के लिए? 67 चाहिए ना, तो 70% बढ़ाओ ना, फिर बाकी बात खत्म करो। एसएससी की तैयारी में क्या मतलब, कॉलेज की पढ़ाई का पूछ रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मान लो मैथ्स रीजनिंग लेक्चर देख 3 घंटा उसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम हमें रिवीजन को देखना? डिपेंड करता है आपकी भूलने की क्षमता कितनी है। अब अगर आप बहुत जल्दी जल्दी भूल रहे हो तो ज़्यादा रिवाइज करो। अब मेरे साथ में ऐसा है कि मैं मैथ्स पढ़ लूंगा तो कभी नहीं भूलूंगा, जीएस पढ़ लूंगा तो मुझे यहाँ पर भूलना ही भूलना है, 10 दिन के बाद भूलना ही भूलना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा रिविजन करेंगे। वोकैबुलरी ऐसा है, सुबह पढ़े रात तक खत्म हो गया, उसको हाथ पे लेके गजनी की तरह घूमते रहेगा आदमी कि शाम तक यहाँ पर याद करे। सिस्टा का मतलब नहीं पता तो लिख लिया, रात तक बैठ करके याद करे। तो सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है रिविजन में। ऐसा नहीं कि एक जनरल फॉर्मुलेट कर दिया 3 घंटे रिविजन के दो। मैं आपको कोई 5 to 7 वाला रूल नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि हाँ 5 दिन पढ़ने के बाद में ये करो। हाँ बिल्कुल करो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट बहुत मायने रखेगा। आइडियल सिचुएशन ये हो सकता है कि आप जब भी पढ़ो पूरा दिन थ्रू आउट, शाम के 1-2 घंटे जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करने पे दो। उसी तरीके से हफ्ते के 1 दिन रिवाइज करने पे दो और महीने के 2 दिन रिवाइज करने पे दो। इस तरीके से करते हैं। सर एक और क्वेश्चन था कि हम जो भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूअसली जब 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं तो थोड़ा माइंड नेगेटिव हो जाता है, तो उस हिसाब से उसे मोटिवेट पढ़ने से किसका माइंड नेगेटिव होता है भाई? एकदम तक वो माइंड एकदम पढ़ने का मन नहीं करता है। उतना मत पढ़ो ना, थोड़ा ब्रेक ले लो। सीधी सी बात है, अगर आप 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपके दिमाग में जाएगा भी कुछ नहीं। आप ब्रेक लीजिए। हम तो कह रहे 4 घंटा पढ़ी क्यों रहो लगातार, 2 घंटे के बाद में ब्रेक ले लो, फिर पढ़ लो 2 घंटा। 5 घंटा लगातार हम ट्रेडमिल पे नहीं भाग सकते, 5 घंटा लगातार हम खा नहीं सकते हैं, 5 घंटा तक एक मूवी नहीं देखी जा सकती, उसमें पॉपकॉर्न चाहिए हमको। तो 5 घंटा कैसे पढ़ सकते हैं लगातार? पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहाँ पे। आप ब्रेक लेकर के पढ़िए, ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होगी। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास में एक बुक अभी मिली है, देखा ना आपने? फिर कभी रहा मौका रहा तो जरूर आएंगे आप लोग के बीच में और भी बातों को जरूर किया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, और सर आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग वर्ड्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। आई इनवाइट आशी दी फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उड़ान फॉर डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। Good afternoon, everyone. So, on behalf of Team Udan, first, I would like to extend my sincere gratitude to all those who made today's event a grand success. Then, of course, a huge thank you to Aditya sir for embracing Abedya 25, for being here. I think all of us got something to incorporate in our life in a positive manner, also to be prepared for such competitive exams. Sir gave such wonderful tips in just limited time. I think all of us got to learn a lot in these minutes. Then, thank you so much, sir.